میں نے ٹن فوڈ کا تھیلا تھاما اور سومی کے ساتھ جزیرے کے جنوبی ساحل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سومی میرے آگے آگے چل رہی تھی اور ہم احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ غروب ہوتے چاند کی مدھم روشنی میں جنوبی ساحل دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، اور کچھ فاصلے پر مچھیروں کی جھونپڑیاں اور ریت پر 5-6 چھوٹی کشتیاں کھڑی تھیں۔ سومی نے سرگوشی میں کہا، ایک کشتی کھینچ کر ادھر لے آؤ۔ میں نے تھیلا وہیں رکھا اور کشتیوں کی طرف بڑھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہاں کوئی جاپانی سپاہی پہرے پر موجود نہیں تھا۔ مچھیرے اپنی جھونپڑیوں کے اندر سو رہے تھے۔ میں ایک کشتی کھینچ لایا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی کو آگے بڑھاتے ہوئے سومی چاند ستاروں کی مدد سے ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس جزیرے پر 2-4 مرتبہ آ چکی تھی۔ دراصل وہاں اس کا ایک رشتہ دار تھا، جو بحری ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا مال خرید کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے آگے بھجواتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جزیرہ ہمارے لیے عارضی پناہ گاہ اور چھپنے کا ٹھکانہ بن سکتا تھا۔ ہماری کشتی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اس جزیرے پر پہنچی، جسے وہاں کے لوگ چوروں کا جزیرہ کہتے تھے۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ جب بھی کوئی بحری ڈاکوؤں کا جہاز یہاں آتا تو ایک طرح کا چور بازار لگ جاتا تھا۔ جزیرے میں دور دور تک ہلکی ہلکی روشنیاں تمتما رہی تھیں۔ سومی کو اپنے رشتہ دار کے مکان کا ٹھیک پتہ معلوم تھا۔ وہ مجھے ایک محفوظ راستے سے لے گئی۔ اس کا رشتہ دار تو سومی کی آوازیں سن کر آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ وہ چھوٹے قد کا گول مٹول اور سفید بالوں والا آدمی تھا۔ پہلے سومی اور پھر مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سومی نے اپنی زبان میں اس کے ساتھ تعارف کرایا اور پھر مختصر لفظوں میں اپنے اغوا ہونے اور والد کے قتل کی کہانی سنائی۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں فرش پر چٹائی بچھی تھی اور ایک طرف پلنگ تھا اور ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ کھڑکیوں پر باریک ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ تونانگ سومی کے اچانک آنے سے کافی پریشان تھا اور وہ بار بار شک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ اور سومی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں باہر برآمدے میں چٹائی پر بیٹھا ان کی آوازیں سنتا رہا، اگرچہ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ بعد میں سومی نے بتایا کہ اس کا رشتہ دار میرے بارے میں بہت پریشان ہے۔ اسے ڈر تھا کہ میری شکل و صورت انڈونیشیا کے رہنے والے کی نہیں ہے، اور اگر کسی جاسوس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ جاپانیوں کو خبر کر دے گا اور اس کے ساتھ وہ بھی پکڑا جائے گا۔ میں نے سومی سے کہا، مجھے صرف 2-4 دن یہاں رہنے کی اجازت لے دو۔ اس کے بعد میں خود ہی کسی طرف نکل جاؤں گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی بحری ڈاکوؤں کا کوئی جہاز آئے، میں یہاں سے نکل کر ان کے عملے میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں سومی کے اس پریشان رشتہ دار کے ہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ دوسرے ہی دن قزاقوں کا ایک جہاز وہاں آ گیا۔ وہ جزیرے سے کافی دور کھلے سمندر میں لنگر انداز ہوا۔ قزاق کشتیوں میں مال لاد کر جزیرے پر آئے اور چور بازار کا کاروبار شروع ہو گیا۔ بحری قزاقوں کے چہرے وحشی اور سخت تھے۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کئی ایک کے کانوں میں بالیاں تھیں اور سروں پر رنگین رومال بندھے ہوئے تھے۔ ہر قزاق کی پیٹی کے ساتھ ایک پستول ضرور لٹک رہا تھا۔ وہ لوٹے ہوئے مال کے تھیلے الٹ رہے تھے اور اس کے بدلے غیر ملکی کرنسی وصول کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے ساحل پر خوب شور مچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ساحل کے پاس 2 جاپانی سپاہی بھی موجود تھے، جو ان قزاقوں سے ایک خاص ٹیکس وصول کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی اجازت کے بغیر یہ لوگ جزیرے پر نہیں آ سکتے تھے۔ میں ایک ریستوران میں آ گیا، جہاں کچھ قزاق بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور کافی پی رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پستول میز پر رکھے ہوئے تھے۔ میں اس فکر میں تھا کہ کسی بحری قزاق سے بات کروں اور وہ مجھے اپنے عملے میں شامل کر لے۔ یہیں سے میرے ایک بالکل نئے ایڈونچر کا آغاز ہونا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ایسے جزیرے بھی تھے، جہاں اگر کوئی بحری ڈاکو پکڑا جاتا تو اسے وہیں گولی مار دی جاتی تھی۔
बहरहाल ये लोग डाकू और कातिल थे, और किसी भी मुल्क के कानून की नज़र में उनकी सज़ा मौत थी। लेकिन ये लोग भी होशियार थे और सिवाय इस चोरों के जजीरे के किसी दूसरे जजीरे के करीब नहीं भटकते थे। रेस्तुरान में उनके कहकहू और बातों का शोर मचा हुआ था। मैं एक कोने में छोटी सी मेज़ के पास बैठ गया और काफ़ी मंगवा कर पीने लगा। मेरी साथ वाली मेज़ पर एक घुंघराले बालों वाला, चौड़े नथनों वाला बॉडी बिल्डर किस्म का कज़्ज़ाक बैठा था। जब वो उठकर जाने लगा तो पतलून में से खुदा जाने कैसे उसका एक बटुआ निकलकर नीचे गिर गया। कज़्ज़ाक को खबर ना हुई और वो झूमता झामता रेस्तुरान से बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से बटुआ उठाया और खोल कर देखा तो वो डॉलर और पाउंड के नोटों से भरा हुआ था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह चमका। मैं बटुआ लेकर उस कज़्ज़ाक के पीछे दौड़ पड़ा। वो अभी रेस्तुरान से थोड़ी ही दूर गया था। मैं भागकर उसके सामने आ गया और बटुआ दिखाकर टूटी फूटी उर्दू में कहा कि ये इसका है, और रेस्तुरान में गिर गया था। कज़्ज़ाक ने झपट कर बटुआ मुझसे छीन लिया, उसे खोल कर देखा और फिर हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ दौड़ने लगा। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चोरों के इस जजीरे में एक ईमानदार लड़का कहाँ से निकल आया है। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने ईमानदारी से नहीं बल्कि हिकमत अमली से काम लिया था। कुदरत ने मुझे एक मौका मुहैया कर दिया था और मैं इससे फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने पूछा, तुमने ये बटुआ वापस क्यों कर दिया? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अमानत में खयानत नहीं करना चाहता था। वो ज़ोर से हंसा और मेरे कंधे पर हाथ मार कर बोला, लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो। जब लोबू ने मुझसे बटुआ वापस करने की वजह पूछी तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उसके सामने अपनी कहानी डाल दी। मैंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों में शामिल होकर खुले समंदरों की सैर करूं। कज़्ज़ाक ने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा, फिर अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और एक तरफ इशारा करके बोला, सामने खोखे में बैठा जो आदमी पैसे गिन रहा है, उसे गोली मार दो। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ जहाज़ पर ले चलूँगा। ये सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि एक बेगुनाह को गोली मारना मेरे बस में नहीं था। मैंने फौरन इनकार किया और मिन्नत समाजित करने लगा, मैं खाना बहुत अच्छा पका लेता हूँ, आलू भी छील सकता हूँ, मैं डेक की सफाई भी कर सकता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। बहरी कज़्ज़ाक एक और ज़ोरदार कहकहा लगा कर हंसा। उसने मेरे हाथ से पिस्तौल वापस लिया और बेल्ट में लगाया, फिर सिगार को एक तरफ फेंक कर बोला, तुम ईमानदार हो, मुझे पसंद आए, चलो मेरे साथ। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने यूं ही अपना नाम पर्सी बता दिया। उसका नाम लोबू था और वो हवाई जज़ायर का रहने वाला था। वहाँ कई कत्ल करने के बाद वो बहरी डाकुओं में शामिल हुआ था। वो मुझे लेकर जहाज़ के कप्तान से मिलने गया। लोबू ने अपनी ज़बान में कप्तान को शायद मेरी ईमानदारी के बारे में बताया और मेरे शौक़ का इजहार भी किया। कज़्ज़ाकों के जहाज़ का कप्तान हाथी की तरह भारी भरकम और गरांडील था। उसकी कमर में 2 पिस्तौल लगे हुए थे, गुंजान दाढ़ी उसके फूले हुए पेट तक फैली हुई थी। वो एक खंजर की नोक से अपने प्याले जितना बड़ा पाइप साफ कर रहा था। उसने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा, कुछ गुर्राया, फिर लोबू की तरफ देखा और एक बार फिर गुर्राहट की आवाज़ निकाली। लोबू मुझे लेकर बाहर आ गया और बोला, कप्तान ने तुम्हें रख लिया है, मगर तुम जहाज़ पर सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया करोगे, तनख्वाह तुम्हें मैं दूंगा। मुझे और क्या चाहिए था। और फिर अगले दिन सारे बहरी कज़्ज़ाक कश्तियों में सवार होकर अपने जहाज़ की तरफ चल पड़े और मैं भी एक कश्ती में लोबू के साथ बैठा था। खुले समंदरों में बहरी कज़्ज़ाकों के साथ सफ़र करने की मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। चोरों के जजीरे से लंगर उठाने के बाद जहाज़ 2 दिन तक खुदा जाने किन किन समंदरों में चक्कर लगाता रहा।
जहाज के इंजन काफी पुराने और उसकी हालत खस्ता थी, मगर वो अपना काम दे रहा था। तीसरे रोज जहाज पर अचानक हलचल मच गई और कज़्ज़ाक़ इधर उधर भागने लगे। लोबो भी कैबिन से निकलकर डेक पर आ गया और मैं उसके साथ था। दूर से एक जहाज के मस्तौल नजर आ रहे थे। लोबो कहने लगा, शिकार नजर आ गया है, तुम नीचे कैबिन में ही रहना, हम थोड़ी देर में हमला करने वाले हैं। उसी वक्त जहाज पर इंसानी खोपड़ी और हड्डियों वाला काला झंडा लहरा दिया गया, क्योंकि ये बहरी कज़्ज़ाक़ों के जहाज का खास निशान होता था। मेरे मुहसिन बहरी कज़्ज़ाक़ लोबो ने मुझे कैबिन में रहने की हिदायत की और खुद ऊपर चला गया, मगर मैं देखना चाहता था कि बहरी कज़्ज़ाक़ किस तरह हमला करते हैं। चुनाचे में चुपके से कैबिन से खीसक कर अर्शे पर आ गया और एक तरफ छुपकर सब कुछ देखने लगा। हमारे जहाज पर 4 पुरानी मार्टर तोपें भी थीं, और फिर हमारा जहाज अपने शिकार के करीब आ गया। तब एक के बाद दीगरे दूसरे जहाज पर मार्टर तोप के गोले फेंके गए। गोले इस तरह फेंके जा रहे थे कि वो जहाज के आसपास समंदर में गिरकर फटें। उसका मकसद सिर्फ जहाज के मुसाफिरों को खौफजदा करना था, और वो जहाज ज्यादा बड़ा नहीं था और उस पर कोई तोप भी नहीं लगी थी। कज़्ज़ाक़ जहाज मजीद करीब आ गया और फिर डाकू ललकारते हुए रस्सों की मदद से दूसरे जहाज पर कूदने लगे। एक क़यामत सी बर्पा हो गई, जिसमें औरतों की चीखों और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे ये सब कुछ सख्त नागवार लगा। मेरे दिल में बहरी डाकुओं के एडवेंचर का जो शौक पैदा हुआ था, वो उस जुल्म सितम को देखकर ख़त्म हो गया। मुझे उन कज़्ज़ाक़ों पर सख्त गुस्सा आने लगा जो औरतों और बच्चों पर भी जुल्म कर रहे थे। डाकुओं ने जहाज को जी भर कर लूटा और सारा सामान अपने जहाज पर ले आए, और मैं छुपा बैठा ये सारा दर्दनाक मंजर देख रहा था। मेरे दिल में उन संगदिल कज़्ज़ाक़ों के खिलाफ शदीद बगावत के जज्बात पैदा हो गए थे। इन्होंने लूट मार के अलावा जहाज पर ज़रूर कुछ बेगुनाह मुसाफिरों को कत्ल भी किया होगा। शाम का वक्त था और कज़्ज़ाक़ अर्शे पर बैठे अपने हिस्से का लूटा हुआ माल समेट रहे थे। मैंने लोबो से कहा, लोबो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लोबो ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब ना दिया। वो लूट मार से हासिल शुदा अपना हिस्सा रुपयों की शक्ल में गिनकर थैली में डालने में मसरूफ था। सूरज गुरूब हो चुका था और जहाज शफक की गहरी सुर्ख रोशनी में समंदर में एक तरफ सफ़र कर रहा था। हवा तेज थी और उसमें समंदरी लहरों की नमी शामिल थी। रात को मैं लोबो के लिए ब्लैक कॉफ़ी का मग लेकर उसके कैबिन में आया। वो अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था, गोया किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने इसे पहले कभी इस कदर फलसफियाना मूड में नहीं देखा था। वो बर्थ से उतरा और कैबिन के फर्श पर बैठ गया, मेरे हाथ से कॉफ़ी का मग लिया और मैं भी वहीं बैठ गया। कॉफ़ी का एक घूंट भरने के बाद लोबो ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम क्या समझते हो कि मैं उन बहरी डाकुओं के साथ अपनी खुशी से रह रहा हूँ? नहीं, मुझे भी ये लूट मार और जुल्म की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पूछा, तो फिर तुम इनके साथ क्यों रहते हो, इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? लोबो ने कोई जवाब ना दिया और वो खामोशी से कॉफ़ी पीता रहा। फिर अचानक गर्दन मेरी तरफ घुमाते हुए कहने लगा, हमारा जहाज यहाँ से 100 मील दूर एक वीरान जजीरे की तरफ जा रहा है। वहाँ हम लोग 2 दिन ठहरेंगे। 2 दिन बाद जब जहाज वहाँ से रवाना होगा तो मैं उसमें नहीं हूँगा। मैंने तजस्सुस से पूछा, क्या मतलब? लोबो ने फैसला किन अंदाज में कहा, मतलब ये कि मैं बहरी डाकुओं वाली ज़िंदगी को हमेशा के लिए खैरबाद कह रहा हूँ। मैंने जल्दी से कहा, मैं खुद इस जहाज़ पर नहीं रहना चाहता, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? लोबो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मगर तुम्हें तो बहरी डाकुओं के साथ रहने का बड़ा शौक था। मैंने सर झुकाते हुए कहा, वो मेरी हिमाकत थी। ये लोग मुजरिम हैं, ये कत्ल करते हैं और लोगों को लूटते हैं। ये संगदिल और बेरहम हैं। मैंने तौबा कर ली है, बस तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी खिदमत किया करूँगा।
लोबू ने कहा, मैं इसका जवाब जजीरे पर पहुंचकर दूंगा। इतनी देर तुम अपने फैसले पर अच्छी तरह गौर कर लो। मुझे गौर किया करना था, मैं अपना फैसला कर चुका था। उनके जुल्म और संग दिल्ली को देखकर मुझे बहरी डाकुओं से शदीद नफरत हो गई थी। और फिर सारी रात जहाज समंदर में सफ़र करता रहा। दूसरे दिन समंदर में एक जजीरे का धब्बा सा नज़र आने लगा। ये एक वीरान जजीरा था, मगर यहाँ मीठे पानी के चश्मे मौजूद थे। जहाज को यहाँ से पानी का ज़ख़ीरा करना था और फिर सारे डाकू जहाज से उतरकर जजीरे में आराम करने लगे। दोपहर तक मैं अरशे की सफाई में लगा रहा, फिर किचन में आया जहाँ लोबू मिल गया। उसने मुझे आहिस्ता से कहा, क्या अब भी अपने फैसले पर कायम हो परसी? मैंने असबात में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा कर किचन से बाहर चला गया। इस तरह दूसरा दिन भी गुजर गया। रात के वक्त लोबू मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा, अब बोलो क्या कहते हो? मैंने उसकी मिन्नत की कि किसी तरह मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं इन वहशी कज़्ज़ाक़ों के जहाज़ पर एक घड़ी भी नहीं रह सकता। लोबू ने एक चश्मे की तरफ इशारा किया, जहां जंग आलूद पत्थरों के दरमियान से शफ़ाफ पानी की लकीर बह रही थी। जहाज़ मुँह अंधेरे इस जजीरे को छोड़ देगा, अब तुम जहाज़ पर मत जाना। इस जंगल में किसी जगह बाकी की रात गुजार दो। सुबह जब जहाज़ लंगर उठाकर यहाँ से रवाना हो जाएगा, तो मैं तुम्हें इसी चश्मे के पास आकर मिलूंगा। और खबरदार, किसी से कोई बात ना करना। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।